गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस टेररिज्म। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग आतंकवाद की चर्चा करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट टेररिज्म, it is we know that it is a very common problem nowadays because it has become a global problem in the contemporary scenario. Terrorism is the tactics of demanding the impossible and demanding it at gunpoint. It is an act of violence to coerce or intimidate the civilian population involving threats, destruction, etc. Today, terrorism is a threat to the whole humanity and even its existence. With few notable exceptions, the weapons and tactics of terrorism have not changed. But the perception of threat and the vulnerability of modern societies have. The history of terrorism is as much European as Middle Eastern and as much secular as religious, far from being willfully indiscriminated. It was pointedly discriminate. The attack on the World Trade Center and Pentagon on 11th September confirmed that terrorism has acquired a new phase. Terrorists are now engaged in a campaign of suicide and mass murder on a huge scale. The word terrorism entered into European languages in the wake of French Revolution of 1789. It was a system of rule of terror by few who had usurped, or you can say have illegally captured the power. अगर हम आतंकवाद को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत या राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। इसका प्रयोग प्राय विरोधी वर्ग, दल, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से करते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि आतंकवाद से यदि कोई राहत मिलती होती तो फिलिस्तीन कभी का आज़ाद हो गया होता। अगर हम आतंकवाद की उत्पत्ति को देखें तो आतंकवाद एक वाद या व्यवस्था के रूप में भले ही बहुत बाद में स्थापित हुआ, पर इसके बीज हजारों वर्ष पहले ही पड़ चुके थे। रोम में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में आतंक और हिंसा की कई उदाहरण हैं जहां गुलामों ने विद्रोह किया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और अमेरिका में कई जगह राजनयिकों और असैनिक कर्मचारियों पर प्राणघातक हमले किए गए। But if you see in 19th century, terrorism underwent a fateful transformation, coming to be associated with non-governmental groups. One such small group was the band of Russian revolutionaries in 1878 to 81, who used the word terrorist proudly. Their efforts led to the assassination of Tsars. Terrorism continued to be associated with assassination of political leaders. And after Second World War, terrorism broadened well beyond assassination of political leaders and heads of the states. Terrorist movement come to be associated with indiscriminate killings. For example, you can say that during 1970s there is a huge crisis, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तक पहुँचते पहुँचते आतंकवाद से अछूते देश भी इसके गिरफ्त में आ चुके थे और आतंकवादी और अपराध जगत में जो सांठगांठ हो चुकी थी उससे अपराधियों और तस्करियों को अपने हथियार बेचने के लिए एक बाजार मिल गया था। आतंकवादी संगठन युवकों को दिशाहीनता और बेरोजगारी की समस्या का लाभ उठाकर वो क्या करते थे कि युवा शक्ति का
हिंसात्मक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों, नेता और विचारकों ने आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर माना और उसकी वकालत की, उनमें फ्रांसीसी क्रांति के सूत्रधार, रूसी क्रांति के नेता, जर्मन समाजशास्त्री जैसे विल्हेम वेटिंग, हिटलर, यासिर अराफात, कर्नल गद्दाफी आदि का नाम हम ले सकते हैं। इन सितंबर 1970, Palestine terrorists hijacked several large aircrafts and blew them up on the ground in Jordan. And then in 1972, 11 Israelis were murdered in a Palestinian attack on Israeli athletes at the Olympic grounds in Munich. And by 1990s, the new face was completely discernible with the emergence of terrorist outfits like the Al-Qaeda, or you can say that recently the Boko Haram, the ISIS, etc. pose a global threat rather than restricted to a particular region. I am discussing these things क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव में आने से पहले एक ग्लोबल सिनेरियो में इसको समझिए। इसकी पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होगी, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आकर इसको समझेंगे। One of the most important aim of terrorism today is to create public attention or even sympathy for their overall demand. As Bruce Hoffman said, terrorists are interested in publicity, not killing. That is a very important point. In contrast to the stereotypical terrorist group of the past, today's terrorists are part of amorphous, indistinct organization, operate on a linear rather than hierarchical basis, have less easily defined or identical objectives, and today they have turned to weapon of mass destructions as it was witnessed in Syria in 2013. Nuclear terrorism by stealing nuclear weapons or acquisition of fissile measures, or you can say in a very you can say very which is not comfortable for any state. That type of measures are adopted by the terrorist groups, and that may pose to the greatest danger to the humanity. And terrorism के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसके स्वरूप या परिभाषा की बात करें तो जो ये वर्ड है टेरर, अलॉन्ग विथ अदर फ्रिक्वेंटली जैसे वर्ड्स यूज़ होता है टेरराइज, टेररिज्म, ये सब लैटिन वर्ब टेरर से निकला है, जिसकी मीनिंग है टू ट्रेम्बल, टू मतलब भय उत्पन्न करना, एक हिंसा, एक प्रतिरोध को उत्पन्न करना। जबकि ये सारे जो मीनिंग्स है, आउटकम्स है, ये किस तरफ परिलक्षित कर रहे हैं कि जो आतंक शब्द है कि ऐसी जितने कार्य हैं जिसके माध्यम से मृत्यु उत्पन्न हो सकती है या फिर लोगों को बाध्य किया जा सकता है या लोगों को मरने के लिए उन्मुक्त किया या बाध्य किया जा सकता है, इस तरह की गतिविधियों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। और सामान्य शब्दों में आतंक को एक ऐसी कंडीशन के रूप में देखा जाता है, परिस्थितियों के रूप में, जिसमें कि लोग ऐसे मतलब ऐसे लोग होते हैं उसमें, या ऐसी गतिविधियां होती है, या ऐसी क्रियाएं या ऐसे प्रभाव होते हैं जिससे कि एक भय की स्थिति, एक बहुत ज़्यादा भय या काफ़ी खौफ की स्थिति, डर की स्थिति, मृत्यु का खौफ बना रहता है। उस स्थिति को हम टेरर की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद की जो आधारशिला है वो हिंसा है। और जहाँ एक और हिंसा व्यक्तिगत कारणों या कुछ गुने चुने कारणों अथवा व्यक्तियों के स्वार्थ तक सीमित होती है, वही आतंकवाद का स्वरूप कैसा है, वो उससे काफ़ी ऊपर चला जाता है और ये व्यक्तिगत दायरों या आधारशिला से बाहर निकलकर बहुत व्यापक और संगठित हो जाता है। Because terrorism is also fueled by unprecedented inferences. In the garb of introducing democracy, what is going on that many countries have created fissures in the society to promote their selfish interest.
and this process is continuing since 20th century. Whether it is you can say some agreements or the creation of Israel or wars waged by Western nations in Middle East countries from time to time. They interfere by arming rebels as in Libya and Syria, and distinguished between goods and bad rebels. Islamic terrorism is also a result of foreign policy of USA and NATO. ISIS is born out of these inferences and arming rebels and is involved in many attacks, or you can say including the Paris, Belgium, Syria etc. कि अब वो इतना वैश्विक स्वरूप ग्रहण कर चुका है कि अब इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही दुर्लभ कार्य बनता जा रहा है। और इसीलिए आतंकवाद का एक कई मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में हम इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम टेरर शब्द को कोई बात करते हैं तो और इसको परिभाषित करना चाहे तो कहीं ना कहीं टेरर बहुत ही क्या है, वो बहुत एक्यूरेटली हम उसको परिभाषित कर सकते हैं आतंक को। लेकिन टेररिज्म या आतंकवाद जो है वो इतना संक्षिप्त रूप से नहीं व्याख्यात की जा सकती। इसके अर्थ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संशय है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम इनके कई अर्थों, कई अलग बिंदुओं को देखते हैं जिससे कि इसके अंदर के परिवर्तन को समझा जा सके। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम सरकारों के माध्यम से भय उत्पन्न करने से जोड़ सकते हैं। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो सरकार के अगेंस्ट हुई थी, जो सरकार के विरोधी थे उन्होंने किया था, और या फिर बोल्शेविक क्रांति जो रशिया में हुई थी 1917 में। लेकिन अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके जो रेफरेंस दिया जाता है इसमें ऐसी सारी गतिविधियां होती है जिसके माध्यम से सरकार के विरोधी वो क्या करते हैं, वो बम द्वारा अटैक करते हैं, लगातार हत्याएं करते हैं, बंदी बना लेते हैं, प्लेनों को हाईजैक कर देते हैं और उसके माध्यम से वो अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। और 70s तक आते आते क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और राज्य आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। जहां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में क्या होता है कि कुछ ऐसी आतंकी गतिविधियां होती है जो कि किसी राजनीतिक समूह के द्वारा एक देश के बाहर चलाया जाता है और वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं प्राथमिक रूप से। लेकिन जो दूसरा होता है जिसको कि प्रश्रय मिलता है, जिसको कि सपोर्ट मिलता है किसी राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जो कि हम लोग इस चीज़ से बहुत भली भांति वाकिफ़ है कि किस प्रकार पाकिस्तान हमारे यहाँ राज्य प्रायोजित आतंकवाद द्वारा कश्मीर में समस्याएं उत्पन्न करता है। और अगर हम इसके करंट फेज़ को देखें तो 3 डाइवर्स मीनिंग में हम इसके टेरर के जो एग्जिस्टेंस है उसको, टेररिज्म के जो अस्तित्व को देख सकते हैं। पहला तो ऐसी सारी गतिविधियां आतंकी जिससे कि संघर्ष उत्पन्न हो सकता है राष्ट्रीय सीमाओं के मध्य, जैसे सांप्रदायिक आधार पर, पंथी आधार पर या निजातीय संघर्ष, हिंसा, जिससे क्या है कि निजातीय एक मिश्रित या बहुल समाज में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लेबनान में संघर्ष होता है, या फिर तमिल और सिंहलीज के बीच में श्रीलंका में, या कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष होता है। हम इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरे वर्ग में वो संघर्ष आते हैं जैसे कि ऐसी सारी आतंकी गतिविधियां जो कि राज्य स्वयं उनको आगे बढ़ाता है, उसको प्रश्रय देता है। जैसे नाजीवाद या स्टालिनवाद को अगर हम देखें तो उसको एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक शताब्दियों तक इन्होंने दमनकारी अपना शासन व्यवस्था कायम किया और उसके आधार पर उन्होंने आतंक को स्थापित करने का प्रयास किया। और ये भी तर्क दिया जाता है कि आतंक और जो ये हिंसा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आज के समय में एक राज्य के कह सकते हैं कि उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए। इसलिए राज्य भी इसको एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करता है। फिर तीसरे वर्ग में वो गतिविधियां आ जाती हैं कि जो कि एक बहुत बड़ा एजेंडा का पार्ट होती है और उसके काफ़ी कह सकते हैं कि उग्रवादी और काफ़ी उग्र सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जब वो लड़े जाते हैं। और ऐसे मामलों में
वो क्या इनका आर्गूमेंट क्या है कि ये it is argued that the rejection of terrorist activities has no bearing on question of legitimacy of the larger global struggles. मतलब सिर्फ आतंकवाद को क्योंकि वो एक प्रतिरोध के तरीके से वो अपने उद्देश्य को प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको रोकने का तात्पर्य यही है कि हम वैध तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आतंकवादी अपने लक्ष्यों को सही ठहराने के लिए उनके अपने तर्क हैं और वो कहते हैं कि उनके संघर्ष के अपने कुछ वृहद उद्देश्य है और उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और उस बेसिस पर क्या करते हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो टेरर की जो डेफिनेशन है आतंक का, तो इसमें लार्जली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स जो लीगल फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टेररिस्ट और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की सरकार ने ही उसके कुछ आधारभूत मानक तय कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ को वो आतंकवादी गतिविधियां मानती है और कुछ को वो देश में उपद्रव पैदा करने वाली गतिविधियों के अंतर्गत रखती है। अच्छा, इसमें जो डेफिनेशंस है उसमें जैसे इन डेफिनेशंस में देखिए, लीगल डेफिनेशंस के अंतर्गत वैधिक रूप से जैसे कानून बने टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट टाडा 1985 में ये कानून बना, और फिर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 2001 में बना। ये जो आए, ये क्या था कि आत्मनिर्णय के नाम पर जो संघर्ष चल रहे थे, जो कि काफ़ी हिंसक प्रकृति के थे, भारत के कई भागों में चल रहे थे, उन्हीं के दमन करने के लिए, उनको रोकने के लिए इन कानूनों का सृजन किया गया। विशेषकर पंजाब में 80 के दशक में, कश्मीर में 90 के दशक में हम इस समस्या को मुख्य रूप से देख सकते हैं। फिर जो जनरली हम आतंकवाद को समझने का प्रयास करते हैं तो उसको एक ऐसे विधि के रूप में देखते हैं जिसमें कि कई ऐसे प्रतीकात्मक हिंसा की वारदातें होती है जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो असर जो है वो असर काफ़ी भयावह रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअली वो एक्ट से ज़्यादा वो असर को प्रभावी बनाने पर उसमें फोकस किया जाता है। इसी तरह की जैसे आतंकवादी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है कई समूहों के माध्यम से, जैसा कि भारत में भी है, जिसके माध्यम से वो अपने क्रांतिकारी जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, उसको वो एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस क्रांतिकारी विचारधारा से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि नक्सलवादी ग्रुप है, ये आंध्र प्रदेश और बिहार में अपने एजेंडे के माध्यम से ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्यों उनके उग्रवादी विचारधारा के माध्यम से वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और उसके आधार पर वो अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। कुछ और समूह जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जैसे कि राजनीतिक स्वायत्तता या आत्मनिर्णय के अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में जो संघर्ष होता है कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा है, या मिजो नेशनल फ्रंट है, या जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है। इसमें जम्मू का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, RN उसमें जम्मू होगा। फिर खालिस्तान कमांडो फोर्स है पंजाब में, या हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सक्रिय है, इन लोगों ने भी आतंकवाद को एक विधि के रूप में प्रयोग किया था। ये जितने भी समूह है, ये सब लोग आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं और ये अपने जितनी आतंकवादी गतिविधि हैं उसको वैध ठहराने का प्रयास करते हैं और उसके आधार, वो धार्मिक विचारधारा के आधार पर इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे समूह है हरकत उल अंसार जम्मू कश्मीर में, या फिर भिंडरावाले की टाइगर फोर्स पंजाब में, इन्होंने धार्मिक आधार पर अपने गतिविधियों को एक तरह से जस्टिफाई करने का प्रयास किया। और आतंकवाद का एक विधायी डायमेंशन भी है। एक अगर विधायी तरीके से कानूनी कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इसमें कई टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और इसको भारत के सामाजिक कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा के पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए इसको समय समय पर परिभाषित किया गया है। जैसे विधि आयोग ने
कुछ अपने सुझाव दिए थे अप्रैल 2000 में, कि जिससे कि एक ऐसे बिल को विधेयक को लाया जा सके जिससे कि आतंकवाद, उसको कि द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल कहा गया, जिससे कि जो एक नोटेड द एब्सेंस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेररिज्म लॉ, कि एक व्यापक आतंकवाद विरोधी कानून का निर्माण हो सके। लॉ के बाद एक 7 टाइपिंग एरर में आ गया है, उसको हटा दीजिएगा, जिससे कि टाडा के एक्सपायर होने के बाद से जो गैप बना हुआ है, उसके बाद कोई ऐसा सशक्त कानून नहीं आ पाया है, उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। और ये सुझाव भी दिया गया कि जो सुरक्षा के जो कॉन्टेक्स्ट उभर कर आए हैं, विशेषकर आतंकवादी जो हिंसा जम्मू कश्मीर में काफ़ी बढ़ गई है या उत्तरी पूर्व में काफ़ी बढ़ गया है, और वहाँ पे भी हम उसी तरह की वल्नरेबल सिचुएशन देख सकते हैं जैसा कि पंजाब में है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो विधेयक था वो एक्ट नहीं बन पाया। ये एक समस्या है कि इन सारे मामलों में सर्वसम्मति होना राजनीतिक दलों की बहुत आवश्यक है, नहीं तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनको लागू किस प्रकार किया जाए वो फिर एक संशय का विषय बन जाता है। क्योंकि अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों का प्रतिरोध शुरू हो चुका था, और विशेषकर 11 सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर पर बॉम्बिंग की गई न्यूयॉर्क सिटी में, और पेंटागन और वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में, उसके बाद से गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी अलर्ट हो गई थी, और उनको लगा कि अब हमें कोई तरीका अपनाना होगा, और इसीलिए उन्होंने अपना पहला विधेयक आतंकवाद से संघर्ष करने के लिए ले आती है, और वो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, ठीक है। और ये 2001 में आता है, और उसके बाद जाके ये कानून में परिणत होता है। मतलब शुरुआत में जब विधेयक का प्रारूप रखा गया तो सर्वसम्मति नहीं बन पाई, लेकिन जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो गया तब हमारे देश में भी इसके लिए एकजुटता हुई कि नहीं, हमें इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, और तब जाके प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स पोटा अस्तित्व में आया। तो जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं, कि हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट जो है वो देखती है, मतलब ऑफन व्हाट द गवर्नमेंट सीज एज मेजर टू काउंटर टेररिज्म, मतलब सरकार अगर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य करती है तो उसका एक हमें दूसरा फैक्टर देखते हैं कि कुछ नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता की मांग करने वाले समूह मानते हैं कि ग्रुप्स एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वायलेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक इंडियन काउंट्रीज, मतलब वो माना जाता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रजातांत्रिक स्वरूप के विपरीत जाता है। मतलब कुछ लोगों के स्वतंत्रता के नाम पर, लोगों के अधिकारों के नाम पर कुछ समूह वामपंथी विचारधारा के और कुछ नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन करने वाले इस प्रकार की गतिविधियों को जस्टिफाई करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जितने नागरिक स्वतंत्रता या प्रजातांत्रिक अधिकारों के समूह की वकालत करने वाले इस बात को इंगित करते हैं कि कुछ गतिविधियां जिनको कि आतंकवाद का नाम दिया गया है टाडा और पोटा के द्वारा, वास्तव में वो आतंकवाद नहीं है, वो राजनीतिक मिलिटेंसी है, या कह सकते हैं राजनीतिक उग्रवाद या राजनीति के विरुद्ध एक संघर्ष है। जैसे के बालगोपाला उदाहरण के लिए वो अंतर स्थापित करते हैं राजनीतिक सैन्यवाद, जो कि एक तरीका है, मतलब वो आतंक का ही एक तरीका है जिसके माध्यम से कुछ समूह क्या करते हैं, उनका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, चाहे वो स्वायत्तता का हो, आत्मनिर्णय का हो, या सामंती व्यवस्था में परिवर्तन लाने का हो, या पूंजीवादी संरचना जो वर्चस्व की बनी है उसमें परिवर्तन लाने का हो। और इसी को वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट ही कॉल्स प्लेन टेरर ऑफ गुंडास, मतलब वो उसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एक अलग एजेंडा है, और लेकिन जो टेरर जो हम गुंडास के माध्यम से या गन टोटिंग, जो क्योंकि कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के आतंक से ये बचाव का तरीका है, या फिर भूस्वामी जो बंदूक के बल पर अत्याचार करते हैं उनसे बचने का
ये माध्यम देता है या माफिया के प्रतिरोध का एक समाधान प्रदान करता है, तो इसको हम उस तरह आतंकवाद नहीं कह सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि अगर हम इफ़ वन डज़ नॉट लाइक, मतलब किसी को अगर अच्छा नहीं लगता है राजनीतिक मिलिटेंसी सैन्यवाद, तो वो इस तरह के मिलिटेंसी को विरोध भी कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सरकार मतलब आर क्विक टू आर्म देमसेल्फ विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ अगेंस्ट द पॉलिटिकल मिलिटेंसी। मतलब सरकार क्या करती है, तुरंत इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो तुरंत उसके खिलाफ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून का निर्माण करके अपने को उन इस प्रकार की गतिविधियों के अगेंस्ट काफ़ी मजबूत रूप से इसके विरुद्ध खड़ा करने में सक्षम हो जाती है। तो जितने भी गुंडा गैंग्स हैं या माफिया है या बंदूक के नोक पर अत्याचार करने वाले भूस्वामी हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक लंबे समय तक अपना वर्चस्व बनाए रखा है। और खालिस्तान कमांडो फोर्स है या हिजबुल मुजाहिदीन है, उल्फा है, पीपल्स वार है, इन सब को कभी आतंकवाद नाम नहीं दिया गया और ना ही उनके लिए कोई हार्श नाम बनाए गए, क्योंकि ये वास्तव में किनसे जूझ रहे थे, ये गैंग से, माफिया से, भूस्वामियों से, अत्याचार करने वाले ग्रुप्स के अगेंस्ट वो संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए इनके खिलाफ ना कड़े कानून उस तरह से बनाए गए और ना उनको टैकल करने का उस तरह से मैकेनिज़्म डेवलप किया गया, क्योंकि वो क्या था, वो एक तरह से पॉलिटिकल मिलिटेंसी का एक प्रोजेक्शन था। इसी को बालागोपाल ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी दिया है कि किस प्रकार से डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिटिकल मिलिटेंसी by government is not so much because it is militancy but because it is politics, and that too politics is of different kind। क्योंकि सरकार इनके प्रति अलग ट्रीटमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक जो मिलिटेंसी है ये उस तरह से आतंकवाद नहीं है और ये उस तरह से सैन्यवाद भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से राजनीति है और ये एक अलग प्रकार की राजनीति है कि उसके माध्यम से वो एक सर्वहारा वर्ग की आवाज़ बनकर उभरना चाहते हैं, तो उस बेसिस पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी समूह है उनका अपना एक राजनीति है और जो कि काफ़ी ज़्यादा जस्ट टेरर से गवर्न और विच इज़ नॉट गाइडेड बाय जस्ट टेरर। वो सिर्फ आतंक पैदा करने के माध्यम से ही शासित नहीं होते हैं, उनके पीछे एक राजनीति होती है, वो सही और गलत की राजनीति होती है जिसका कुछ सामाजिक आधार होता है। क्योंकि होता क्या है कि उनके एक बहुत बड़ी संख्या के लोग उनके सपोर्ट करते हैं, इवन उनके इस तरह के सशस्त्र गतिविधियों का भी समर्थन करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे कौन सी राजनीति क्रियाशील है। आप जानते होंगे नक्सलवादी गतिविधियों, इस तरह के संघर्षों को सपोर्ट करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक, एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल ग्रुप उसके सपोर्ट में है। तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के माध्यम से वो अपना ये जो पॉलिटिक्स है इसको प्रशय करने का, इसको पुष्पित पल्लवित करने का भी काम करते हैं, क्योंकि वो जो सपोर्ट करते हैं इससे क्या होता है, ये बहुत ही कठिन बना देता है कि कैसे इनको डील किया जाए। क्योंकि ऐसे जब सपोर्ट मिलता है इनको, तो इनको सिर्फ पुलिस के तकनीकों के माध्यम से इनको डील करना बहुत आसान, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह जाता है कि बस कठिन कानूनों के माध्यम से उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तब ये मामला काफ़ी उससे बाहर निकल कर सामने आता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कुछ और पहलुओं पर हमें विचार करना बहुत ज़रूरी है कि आतंकवाद के कुछ आर्थिक पहलू भी होते हैं, जैसे जिहाद की पुकार, या कहा जाता है कि सदियों से चली आ रही धार्मिक कटुताएं हैं, या क्षेत्रीय विवाद को हम आतंकवाद के मूल के रूप में देखते हैं। पर बात है कि परंतु इसके पनपे आतंकवाद को इतना मारक और इतना सार्वभौम जो ग्लोबल बना देता है, और इसकी ताकत, इसकी आर्थिक कामयाबी ने ही इसको बनाया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आतंकवाद का एक पहलू इसके व्यापार का है, और ये कोई मामूली पहलू नहीं है। हर मानवीय गतिविधि की तरह आतंकवाद एक आर्थिक आयाम है,
और वैश्विक आतंकवाद का जो अर्थतंत्र है वो करोड़ों खरबों रुपए का डॉलरों का है, ये आंका जाता है। और ये राशि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 5% के बराबर है और भारत की अर्थव्यवस्था से देखें तो कई गुना है। इसमें शामिल है जैसे दान के नाम पर एकत्र किया जा रहा जो पैसा है, कुछ देशों में चोरी छुपे जो कुछ देशों से उनको मिलने वाली आर्थिक या बुनियादी मदद है, अपहरण है, तस्करी है, नशे के धंधे से जुटाई जा रही दौलत है, या फिर आतंकवादी संगठन के जरिए चलाई जा रही कंपनियों की कमाई है। तो इन पर ये जो आतंकवाद का आर्थिक पहलू है इस पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक है। फिर आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक समय था जब आतंकवादी हमले का मतलब था कि लोगों की जान ले लेना, कोई बम फोड़ देना या बहुत कुछ हुआ तो कुछ लोगों को अपहरण कर लेना। पर आज के आतंकवादी हमला चंद हथियारों या हवाई जहाज के अपहरण से आगे निकलकर हवाई जहाज़ों के आत्मघाती हमले तक पहुंच गया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर एक आतंकवादी चाहता क्या है कि एक घटना के बाद दूसरे घटना इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण और दिल दहलाने वाला हो कि उससे लोग भयभीत हो जाए। अपने लक्ष्यों के लिए बुनियादी तौर पर आतंकवादी कई तरीके का प्रयोग करते हैं, जैसे बम विस्फोट, कत्लेआम, अपहरण, हथियारबंद हमला या घात लगाकर हमला, बीमाल हम अपहरण, अवरोध और बंधक बनाना, आगजनी। ये इस तरीके से मतलब कोई भी तरीक़ों से वो धमकी देना या अपना भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आधुनिक तकनीकी भी हैं, वो अपनाने में कोई आतंकवादी परहेज नहीं कर रहे हैं, जैसे परमाणु उपकरणों का इस्तेमाल हुआ या फिर जैविक रासायनिक हथियारों का प्रयोग है, आत्मघाती हमला हुआ, हवाई हमला हुआ। इन सब से भी आत्मघाती हवाई हमला है, तो कई तरीके और गतिविधियां इनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसका स्वरूप काफ़ी ही विकट होता चला जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद का एक अर्थ है कि सरकार या राजनीतिक प्रणाली को झुकाने के लिए इस्तेमाल करना, या एक तरह से कहे कि शहरी गुरिल्ला युद्ध, जिसको पॉलिटिकल मिलिटेंसी भी कहे जा सकते हैं। और आतंकवादी जो है वो 3 बातों का निर्णय खुद करते हैं। एक तो उनका लक्ष्य क्या होगा और समय क्या होगा, और दूसरा उनके हथियार क्या होंगे। और आतंकवाद की प्रकृति में ये निहित है कि वो एक जगह कार्यवाही करता है पर उसके तार दूर दूर तक फैले होते हैं। जैसे आसाम का आतंकवादी संगठन उल्फा कई काम अपने बांग्लादेश के कार्यालय से करता है। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस जो नेटवर्किंग बनी हुई है, उस नेटवर्किंग का बहुत प्रभाव आतंकवादी गतिविधियों पर पड़ता है। फिर पूर्वोत्तर में सक्रिय कई आतंकवादी संगठन अपनी कार्यवाही तो राज्य में करते हैं, पर उनके नेता बैंकॉक, लंदन में रहते हैं और वहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आतंकवाद का जो सबसे बड़ी शक्ति उसके वास्तविक उद्देश्यों का रहस्यात्मक बनाए रखने में होता है कि वो क्या चाहते हैं। जैसे अमेरिका ओसामा बिन लादेन से, या रूस चेचन्या आतंकवादियों से, या श्रीलंका लिट्टे से, या फिर आयरलैंड आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से, जापान रेड आर्मी से, इज़राइल फिलिस्तीन मुक्ति संगठन से, इटली रेड ब्रिज से, या इराक कुर्द से, भारत कई देशी हिजबुल मुजाहिदीन, फिर ISIS आतंकवादी संगठन से संबंधित हिंसात्मक कार्यवाहियों से त्रस्त है। अब ये सिर्फ टेरर के टू फ्राइटन टू टेरर से नहीं, सिर्फ वो शब्द से व्युत्पत्ति फ्रांसीसी लैटिन शब्द से तक नहीं रह गया है, क्योंकि उसको अब कैसे रोका जा सके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि भारत में जो आतंकवाद की स्थिति है, मतलब इसमें हमारे यहाँ समस्या क्यों है, क्योंकि भारत में विभिन्नताएं हैं, और विभिन्नताओं के कारण समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि यहाँ के कई इलाकों आतंकवादियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। इतना विशाल देश, 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बीच अगर कोई गद्दार आकर छुप जाए और अपने इरादों को अमली जामा पहनाने लगे तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर आज़ादी के बाद अगर देखें तो आतंकवादी गतिविधियों का हमारे यहाँ पे 5वें दशक में ही प्रारंभ हो गया था। नागालैंड में उसकी शुरुआत हुई, फिर 6ठे दशक में मिजोरम में हुई, 7वें दशक में मणिपुर में हुई, 8वें दशक में आसाम त्रिपुरा में उल्फा आतंकवादियों की गतिविधि देखी जा सकती है। इसके बाद पंजाब और कश्मीर
में आतंकवाद तो अपने विकराल रूप में देखा ही गया था। और वर्ष 1989 के बाद से भारत में कश्मीर पर, पंजाब पर, पूर्वोत्तर पर आतंकवादी हमलों की जैसे झड़ी सी लग गई थी। और यहाँ तक कि भारत की संसद और दिल्ली के लाल किले पर हमला कर आतंकवादी ने भारत के राजनीतिक वजूद को ही एक तरह से खुली चुनौती दी है। अब यही बहुत ही विवादास्पद लगता है कि ऐसी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील, इनके प्रति सहानुभूति रखने वाले समूहों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। जैसे दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में 11 लोग मारे गए। इस घटना ने दुनिया के लोगों का ध्यान दिल्ली में बढ़ती हुई दहशत की ओर ले आया। जम्मू कश्मीर, आसाम, पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त अगर हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधियों को देखें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे 12 मार्च 1993 में मुंबई में 13 धमाकों में 257 लोग मारे गए और लगभग 700 से अधिक घायल हुए थे। फिर 14 अप्रैल 1998 के में कोयम्बटूर में एक सभा में धमाके में 58 लोग मारे गए। 15 अगस्त 2003 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और झावेरी बाजार में आतंकवादियों द्वारा 58 लोग मारे गए और 100 घायल हो गए। 7 मार्च 2006 में बनारस में हुए धमाकों में 20 व्यक्ति मारे गए। 22 मार्च 2006 में दिल्ली में 2 बम विस्फोट हुए जिसमें एक व्यक्ति मरे और 70 से अधिक लोग घायल हुए। मई 2006 में मालेगांव, महाराष्ट्र में मस्जिद के बाहर धमाकों में 38 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए। 11 जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए जिसमें लगभग 128 लोग मारे गए, 190 लोग मारे गए, 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिर 19 फरवरी 2007 में पानीपत में समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाके में 160 के लगभग लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। फिर 18 मई 2007 में हैदराबाद में मक्का मस्जिद में आतंकवादियों द्वारा 14 लोगों को क्यों मार दिया गया और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ये भयावह स्थिति हमारे देश में एक लंबे समय तक से चली आ रही है और ये बढ़ती चली जा रही है। इस पर कोई नियंत्रण हम देख सकते हैं कि नहीं लग पा रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है वो बहुत ही भयावह स्थिति में है। अगर वर्ष 2000 इसका अगर हम थोड़ा सा इस समस्या को समझने का प्रयास करें तो वर्ष 1971 की शर्मनाक हार को पाकिस्तान भूल नहीं पाया था। उस समय उनके 1 लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था और वे युद्धबंदी बना दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो ये सीमा पार होने वाले आतंकवाद से इतने हजारों नागरिक, 13-14 हज़ार नागरिक, 4-5 हज़ार सुरक्षा बल ने अपनी जान गंवाई है और ये स्थिति दिन प्रतिदिन और भयावह होती चली जा रही है। और आतंकवाद का एक और विस्तार हम माओवाद या नक्सलवाद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात तो चिंता का विषय है किंतु असम की स्थिति कश्मीर से ज़्यादा चिंताजनक की है। आतंकवादियों के हाथों मारे गए कुल 490 अगर नागरिकों में से 170 अकेले असम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, जबकि जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या काफ़ी कम थी। तो असम के साथ साथ ही लगता हुआ मणिपुर का छोटा राज्य है जिसकी आबादी तो जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का 5वां हिस्सा ही है। वहाँ आतंकवादियों के हाथों 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं अमूमन। एक अनुमान है कि पिछले 3-4 वर्षों में देखें तो नक्सलवादियों ने लगभग 500 अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। तो ये क्या करते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को ये बहुत बड़ी चुनौती पहुंचा रहे हैं। और इसको शुरुआत हुई थी 1967 में ही, जब नक्सलबाड़ी में वर्ग शत्रुओं को समाप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका गया। और वर्ष 2006 में वामपंथी उग्रवादियों ने लगभग 270 लोगों को मार दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 600 आतंकवादियों का सफाया किया, लेकिन वामपंथी उग्रवादियों ने मौत के घाट जो उतारा लोगों को वो थे लगभग 400। तो बात ये है कि ये पैरेलल जो अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। और अगर देखें तो आतंकवाद की जो ये समस्या है, अब इसके जैसे इनके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि हमें इनकी प्रॉब्लम्स की गहराइयों में जाना होगा, इनकी समस्याओं को समझना होगा
तभी जाके हम इनका ये इस तरह की गतिविधियों में क्यों संलग्न रहते हैं इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे कि आतंकवाद के जो महत्वपूर्ण कारणों में क्या है कि अपमान की खाद होती है, नफ़रत की उसमें मिट्टी होती है और समर्थन रूपी पानी की बूंदें उनको मिल जाती है। तो फिर क्या होता है, एक छोटे से उद्देश्य की ज्वालामुखी फटती है और उसे खुद अपने स्वरूप और अंदर की विनाशकारी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं होता है और जड़ पर आतंकवाद का एक छोटा सा पौधा देखते ही देखते वटवृक्ष बनकर आ जाता है। और किसी भी प्रकार का आतंकवाद, क्रांति या आंदोलन को किसी कारण विशेष से संबद्ध कर देना नादानी है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों के उहापोह की उपज है। इसलिए उसका एक कारण बताना बहुत मुश्किल है। और देश मतलब आतंकवाद से निपटाने के लिए कई कोशिशें भी की गई है। ऐसा नहीं कि इसके क्षेत्र में कोशिशें नहीं की गई, पर हम इससे क्यों नहीं निपट पाए हैं, अब ये चिंता का विषय है। अगर हम देखें तो जैसे अर्स्टवाइल सिचुएशन क्या बनी होती है कि अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, लार्ज स्केल प्रॉवर्टी स्ट्राइक अट्रैक्ट जो यूथ है वही आतंकवाद की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा आज के समय में जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो आतंकवाद ज्वाइन कर लेते हैं और वो पूरी जो अपना जीवन भर की शिक्षा है वो बेकार हो जाती है। वसीम जैसे भारत का एक उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे, जिसने हैदराबाद से 2011 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। फिर वो लंदन चले गए एमएस प्रोग्राम की पढ़ाई करने के लिए और उन्होंने वहाँ ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल की, पर बाद में वो आतंकवादी गतिविधियों में ज्वाइन कर गए। तो सबसे पहला जो स्टेप बहुत ज़रूरी है आतंकवाद के लिए ये है कि इनके आधारों को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है और इनके विचारों को जो पोषण करने वाले लोग हैं उन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जबकि आधुनिक विचारों को फैलाया जाएगा और उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उनकी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। पश्चिमी देशों में एक तरह से देखा जाए कि वो अपने आतंकवाद, उनको भी ये समझना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पश्चिमी मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि होता क्या है कि वो क्या सोचते हैं आज की प्रजातंत्र को हम लोग बॉटम अप, मतलब वो सोचते हैं टॉप डाउन प्रोसेस से थोप दिया जाएगा, ऊपर से नीचे की प्रक्रिया में प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये बॉटम अप टॉप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें चेंजेस लाया जाए, लोगों की समस्याओं को समझा जाए कि क्यों इस तरह के लाइन में लोग चले जाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे कि राज्य जो स्टेट टू प्रिवेंट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कि राज्य कम से कम आतंकवाद को पोषण करने में पैसा ना लगाए। जैसे GS एक्सपैंडिंग द रिट ऑफ द FATF टू कवर टेरर फाइनेंसिंग, उन्होंने काफ़ी उसको डायमेंशन को ब्रॉड किया। GS को एक्सपैंड करते हुए उसके रिट में संशोधन करते हुए FATF के डायमेंशंस को काफ़ी बढ़ाया गया ताकि आतंकवाद को वित्तीय पोषण देने वालों को उसके अंतर्गत लाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने क्या किया, लागू किया है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिवेंशन प्रतिरोध का जो ये अधिनियम पारित हुआ, जिससे क्या किया जाए कि रेस्ट्रिक्शन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन इशूइंग ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स, उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। कोऑर्डिनेटेड तो ज़रूरी क्या है कि हमें ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमें ज़रूरी है, तभी जाके हम आतंकवाद, क्योंकि अभी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, ये सिर्फ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समस्या नहीं है। तो दुनिया के जो 19 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि या समझौता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आतंकवादियों पर नियंत्रण रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रत्यर्पण यानी आरोपियों को सीमा पार भेजने का कोई समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं है। दोनों में से कोई देश अपने नागरिकों को दूसरों को सौंपने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए दो तरफा संधि या समझौते की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ पर नहीं है, और यही बहुत बड़ी समस्या है। फिर हमारे यहाँ कानून का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देश का काम इंडियन पिनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट से चल रहा है, जो 1863 में बनाया गया था।
अब इनमें संशोधन की आवश्यकता है। फिर सूचना टेक्नोलॉजी का भी हमारे यहाँ अभाव है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इससे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दूसरे देशों में उपग्रह के ज़रिए सड़कों और बाज़ारों पर नज़रें रखी जाती है कि वहाँ हमारे मतलब किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है। लेकिन अगर हम हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ क्या है, ये काम पुलिस के उन सिपाहियों द्वारा की जाती है जिसके हाथ में सिर्फ एक लाठी होती है। पुलिस थानों में अपराधियों की रिकॉर्ड अब भी धूल भरी अलमारियों में पड़े हैं। अधिकतर पुलिसकर्मी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। दुनिया के सभी प्रमुख महानगरों में पुलिस द्वारा अपराधियों का पीछा करने के लिए या उन्हें समय पर दबोचने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना आम बात है, पर भारत में पुलिस अब भी जीपों का इस्तेमाल करती है। तो ये तो है कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं, हम उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं मैकेनिज़्म को। फिर हमारे यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी अपर्याप्त हैं, क्योंकि भारत में अपर्याप्त सुरक्षाकर्मी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भारत में 1 लाख जनसंख्या की सुरक्षा के लिए 122 पुलिसकर्मी हैं, जबकि विकसित देशों में लगभग 250 से 500 होते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का ये सुझाव भी है कि 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए कम से कम 222 पुलिस होनी चाहिए। तो सुरक्षा कर्मियों के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हम यहाँ पर थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। अमेरिका में जब 11 सितंबर की घटना के बाद राष्ट्रपति बुश ने पहला काम ये किया कि होमलैंड सिक्योरिटी नाम से एक नया सुरक्षा का विभाग स्थापित किया। आतंकवाद से जुड़ी हर बात को ये विभाग देखता था। इसके अतिरिक्त ये विभाग एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से लेकर विदेशियों पर निगरानी रखना, बाहर से आई पूंजी किस बैंक में किस खाते में जारी है, इस पर कड़ी निगरानी रखता था। तो हमारे देश में इस तरह की स्थिति कानून की बहुत ही महती आवश्यकता है। फिर आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका ने लगभग 322 लोगों, संगठनों और उनके समर्थकों को आतंकवादी करार देते हुए उनकी संपत्ति जब्त की। और एक अनुमान अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि दाऊद के पास लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का वो मालिक है। और भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार है। और इस आर्थिक साम्राज्य को अगर ध्वस्त किया जा सके तो आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सकती है। इसके लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के रूप में एक तरीका है कि ग्लोबल लीडरशिप से आतंकवाद के आर्थिक जाल को काटा जाए। इसके माध्यम से सुरक्षा परिषद उन देशों के खिलाफ कार्रवाई करे जो आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर ओसामा बिन लादेन के अलकायदा ने आतंकवादी हमला किया तो अमेरिका ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए न केवल उसके लिए कदम उठाए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ आनन फानन एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ भी तैयार करके अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में हमला बोल दिया। पर हमारे यहाँ इस तरह से त्वरित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। और आज के समय में सूचना तकनीक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना होगा, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में हवाई अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल कैमरों छुपा कर लगाए गए हैं जो लगातार कंट्रोल रूम में तस्वीरें भेजते रहते हैं। और इसके अलावा सूचना तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए भी आतंकवादी संगठन और जो अन्य अपराधियों के कंप्यूटर या ईमेल कोड तोड़ने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जितना भी जाली कागजात है या नकली वेश का सहारा लेकर अपराधी बच ना पाए, इसके लिए जैव रसायन तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी हमें थोड़ा और सशक्त होना पड़ेगा। फिर कानूनों का पालन, ये बहुत एक बड़ा विषय है, क्योंकि पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा सुरक्षा है जिन देशों में वहाँ सबसे ज़्यादा संविधान का या कानूनों का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ कानूनों में ये पेचीदगी ही है कि हम देखेंगे कि 1993 में मुंबई के विस्फोटों के दोषियों को काफ़ी लंबे समय बाद जाके टाडा की कोर्ट ने सज़ा सुनाई। तो ये कानून की पेचीदगी है जिसकी वजह से अपराधी एक लंबे समय तक सरकारी तंत्र के ही मेहमान बने रहते हैं। और बहुआयामी द्विपक्षीय दूरस्थ युद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि आतंकवाद एकाकी समीकरण नहीं है, ये एक बहुआयामी बहुपक्षीय दूरस्थ युद्ध है। ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आतंकवादी हवा में तो पैदा होते नहीं हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आतंकवादियों को शरण कौन देता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति निर्ममता का बर्ताव करना चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आतंकवाद के संपूर्ण दर्शन को मानवता विरोधी मानना ही पड़ेगा और उसके उन्मूलन के लिए विश्व स्तरीय रणनीति बनानी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आतंकवाद से लड़ने का प्रशिक्षण भी देना ज़रूरी है। जैसे ब्रिटेन में पहली यूरोपियन टेररिज्म सर्वाइवल कोर्स शुरू किया गया है। इस प्रकार का प्रशिक्षण यदि भारत में भी दिया जाए तो आतंकवाद से मुकाबला करने में काफ़ी मदद मिल सकती है और आम जनता को उसके लिए सेंसिटाइज संवेदनशील बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा का कोई भी मामला जो है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। मोबाइल या कंप्यूटर का आतंकवादी में कैसे इस्तेमाल होता है, किसी वारदात के बाद क्या करना है, न्यायालयिक विशेषज्ञ के आने तक सबूत को कैसे बचाए रखना है, एम्बुलेंस या मेडिकल सुविधा का कैसे इस्तेमाल करना है, घायलों को कैसे मदद करनी है, इस बात की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी जानी चाहिए। और प्रशिक्षित लोगों को अधिकारी भी बनाया जा सकता है, जिसका प्रावधान हमारे कानून में भी है। तो आतंकवाद या नक्सलवाद की जो हिंसा है उसको निपटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता जागरूक हो, क्योंकि आम आदमी के चौकन्ना हुए बिना खुफिया तंत्र कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा, जो हेलेन एडम्स केलर इस बात पर बल देती हैं कि हम अकेले बहुत कम कर सकते हैं और मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग फॉर इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस मैनेजमेंट इज़ इम्पेरेटिव फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो नेग्लेक्टेड डोमेन है जैसे मैरीटाइम और साइबर टेररिज्म है, इनको भी बहुत प्रभावी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों का माध्यम बनाया जा रहा है। इस पर भी ध्यान रखना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रभावी तरीके नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा, हम आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, जो कि पूरी मानवता एवं विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और इसको अब हम लोग समअप अगर करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये भारतीय राजनीति में 1980s के दशक में ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर उभरी थी। खासकर उस समय पंजाब में जब आत्मनिर्णय के आंदोलन हुए थे और उसके बाद उत्तर पूर्व में, फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को उन गतिविधियों और उन हिंसाओं के सशक्त संघर्ष के रूप में देख सकते हैं कि जो कि एक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो संघर्ष है ये वास्तव में राज्य के विरुद्ध संघर्ष होता है, जो कि देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। कुछ कानून भी इसके लिए अपनाए गए, जैसे पोटा का है, टाडा है, जिससे कि वो सरकारें लाई गई जिससे इस चुनौती का सामना किया जा सके। लेकिन कुछ जिसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं उससे ही आपको समअप भी करना होगा कि कुछ नागरिक अधिकार कार्यकर्ता समूह है जो इनको इस तरह से देखते हैं कि इन कानूनों का भी दुरुपयोग होता है और उससे सामान्य आम जनता के अधिकारों का भी हनन होता है। और वो देखते हैं कि उनको मानना है कि कुछ लीगल मेजर्स अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से मिसडायरेक्टेड रेमेडी फॉर ए प्रॉब्लम, क्योंकि उनका जो ये तर्क है कि सब कुछ कानून के पैमाने के अंतर्गत रखेंगे तो ये समस्या एक राजनीतिक समस्या है, उसकी प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से रिस्पॉन्स करने पर इसका समाधान नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि टेररिज्म जो है वो हमेशा बिना सोचा समझा हिंसा नहीं है। कुछ जो आंदोलन होते हैं उसके काफ़ी सामाजिक राजनीतिक जो जड़ है और उसकी कुछ विशिष्ट विचारधारा होती है, इसलिए उनको केवल मात्र हम कानूनों से, कुछ विशेष कानूनों से हम उससे नहीं जूझ सकते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक प्रश्न है और इनका उत्तर भी हमें कानून के ऊपर उठकर मतलब इसको केवल हम लॉ एंड ऑर्डर का
प्रश्न नहीं समझ सकते हैं, समस्या नहीं समझ सकते, उसके ऊपर उठकर उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। क्योंकि जो हिंसा का है, दमन का है, आतंक का है, जो भारत राजनीति में वो पैर पसार चुकी है, इसका कारण ये है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसके जो फ्रेमवर्क में है, इसके परिदृश्य में जन सहभागिता जो है वो बहुत कमज़ोर है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि जनता संप्रभु राष्ट्र के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए जागरूक हो, और जो संवैधानिक जो वादे किए गए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा, जिससे कि वो एक प्रजातांत्रिक समाज एवं राज